Hello everyone, and welcome to second day of webinar hosted by SPIC. Today's webinar is on a very interesting emerging technology, that is data science and its tools. I'm Sandeep Sharma from SPIC, and I'll be one of the panelists today. And before we start with the session, I will share some information about our organization. I know most of you attended yesterday's session also, but now since I've got an opportunity, so I'll just share a little more information about our organization. As you are aware that in every state of India, there is a nodal body which is formed by that particular state to implement all the IT policies. For instance, if you are in Punjab, so in Punjab there is Punjab Infotech, which implement all the IT policies. If you go to Haryana, there is Heartron, which implement all the IT policies of Haryana state. So as far as Chandigarh is concerned, SPIC is the nodal body which implement all the IT policies of Chandigarh administration. So as I told you yesterday that our mandate is also to create talent pool for the IT industry. So in order to do that, we have a very a unique way of we have adopted a very unique way of training methodology at SPIC. Now, what happened is that students who register with us for training, they get an opportunity to work with the startup companies. As I told you, we also have an incubation center where we provide space to the startup companies and young entrepreneurs. And we are also coming up with a co-working area, which we're going to open it for mainly for the students. So coming back to the training part, when student registered with us, that student get an opportunity to work with all these with one of these startup companies on their live projects. Okay, and however, these companies do screen the student first whether these students are capable to handle a live project or not. So if you register with SPIC, you'll be getting a live project, and you'll get an opportunity to work with these startup companies, and you'll also get an insight how the projects are developed and implemented at the ground level, which normally a student doesn't get any exposure. So moving further, uh, you know this COVID-19 crisis has really created a lot of chaos around us, and we have been shifted to the online classes and the virtual classroom. So taking a leverage out of it, so that's why we started this virtual classroom training portal where we can offer all our training programs to all the students in Chandigarh, around Chandigarh, or maybe to other states also. Okay, and it's basically a platform where all these students can derive a benefit out of our facilities and all our training programs. Now I won't take much time. We'll just get on with the session. Today we have with us Mr. Ashok Kashav. He's a senior faculty with SPIC, and he has more than 20 years of experience in his field. And he's the guy who's been doing a lot of training to IT professional, to students on Java, PHP, Android development, and now he's been taking back-to-back trainings on data science and tools. So he's the best person available as far as the data science and tool is concerned. Now I would request Mr. Ashok to start with the session. Thank you, sir. Am I audible? Yes, you are audible. Good afternoon, everyone. Welcome to this session. Before starting this session, let me introduce myself. My name is Ashok Kashav. I'm working with SPIC last 20 years. Today we will discuss data science and what is data science, need of data science, use cases in data science, and tool used in data science, life cycle of a data science, and case at last case study of Netflix. So before starting this session, first of all, we will discuss data. What is data, and what is the use of data nowadays? So data is any set of characteristics that gather and translated for some purpose, usually in analysis. In simple form, data is a raw facts and figure. So what we do, we organize that data in a proper manner and take information from that. If we consider there are three types of data: structured data, semi-structured data, and unstructured data.
Structured data is data which stored in a proper format, specific format. It includes name, date, credit card number, stock information, stock structure. Data is highly organized and easily understood by the machine. Following are the characteristics of a structured data: highly organized, clearly defined, easy to access, easy to analyze. The example of a data structure is like name, age, gender, address, phone number, currency, date, and billing info. So where we store this data, structured data, we store this data in SQL database, MySQL, spreadsheets, and Oracle. The structured data, enterprise data, is used in warehouses, ERP system, CRM system. Nowadays, 10% of structured data is used and other data is unstructured data. Unstructured data is that which is not stored in a proper format, not stored in a proper mode. It is not defined in predefined manner. There is different kind of unstructured data like text file, documents, server, website and application log files, sensor data, images, different kind of images, video files, audio file, email, and social media data. Social media data like tweets, post, image uploads, emoji, and rating of a different website. This is the growth of unstructured data. Nowadays, there is a lot of use of unstructured data due to social sites. If we check the data in the 90s, there is a small structured data in a small scale. After the 2000, there is a lot of growth in unstructured data due to Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. So these sites produce a lot of unstructured data. So there is a difficulty to handle this unstructured data. So what we do this with data? So there is a need to store that data in a proper format and transform format that. There is a difference between structured data and unstructured data. Structured data और unstructured data में क्या difference है? It can be displayed in row, column, and relational data such as SQL and MySQL. Unstructured data cannot be stored in row and column and relational database. The structured database has a specific data type like number, date, and string, but in structured data does not have any data type. It's stored in images, audio, video, word processing files, and email and spreadsheet. There is an estimate 20% of enterprise data is a structured data and 80% data is a unstructured data. So structured data is use storage like SQL and warehouses. There is more storage like Hadoop and big data. Structured data is easy to manage and it provides proper solutions. There is a difficulty to manage and protect the unstructured data. So now what we जैसे कि हमें पता है कि there is a lot of data, unstructured data. So what we do with that data and what is the role of data science to handle the unstructured data? First, we will discuss the definition of data science. Data science is a process of extracting knowledge and insight from the data using scientific method. Means we have a data and we use the scientific technique to handle that data and extract the result like decision making and predictions from this using machine learning. So need of a data science. What is the need of a data science? Because we know there is a lot of data flow nowadays, like Facebook. In Facebook, we post, we upload data, we like the pictures. So these kind of a data. In Twitter, we tweet, like the tweet, retweets. This is a flow of a data. Suppose a person tweet, उसके बाद कुछ लोग जो हैं उसको retweet करते हैं, like करते हैं, काफी ज्यादा जितने भी follower होंगे उसके बेस पे data का flow होता है. So that data is unstructured data and we have to store that data. There is a problem to store that data. So what we use, we store that data in Hadoop or big data. There is a lack of predictive analysis in data. Lack of predictive analysis means we have a data, we store that, but we cannot predict that. We cannot take decision on the basis of data.
So data science provide the help to the take predictive analysis of the data. There is lack of insight, scientific insight of data. For example, in previous way, with the structured data, what we do, we store data, we update data, we retrieve data, and make some report, day by day report, and find what is the resource utilization of that data. But now, what we do, we predict the data, predict analysis, we forecast about the data. We can do sale forecasting. So data science help us to take decision making, predictions, and pattern discovering. Pattern discovery means, suppose let's take the example of a let's take example. For example, in अक्टूबर और नवंबर सेल क्या होती है, हमारी सेल बढ़ जाती है. वो सेल किस रीजन से बढ़ती है, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं. जैसे कि अक्टूबर और नवंबर में सेल बढ़ने का रीजन क्या है. देयर आर लॉट ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया, और द वेदर चेंज मीन्स विंटर सीजन की शुरुआत होती है. तो उसमें क्या होता है कि हमारे डेटा का पैटर्न चेंज हो जाता है. हमारे पास सेल जो विंटर से रिलेटेड जो भी क्लोथ आइटम्स होती हैं उनकी सेल हो जाती है, और जो फेस्टिवल के अंदर कुछ आइटम जो होती हैं उसमें सेल्स इंक्रीज होता है. तो बिकॉज हम इस तरीके के डेटा को पैटर्न फॉलो करके हम उसके सेल्स का या अपनी सेल या ग्रोथ का प्रेडिक्शन किया जा सकता है. इसी तरीके से फॉर इन अदर कंट्री ड्यूरिंग द क्रिसमस सेल इंक्रीज, तो वो किस रीजन से होती है, वही सेम एक फैक्टर उसके अंदर वेदर चेंजेस आ गया, सीजनल चेंजेस आ गए, एंड अदर वन इज ड्यू टू क्रिसमस. दैट इज उस तरीके के डेटा को पैटर्न करके ही कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है. नाउ देन एंड नाउ, पहले डेटा को किस तरीके से हैंडल किया जाता था और आजकल डेटा को किस तरीके से हैंडल किया जाता है. जैसे कि हमें पता है कि पहले जो स्ट्रक्चर, देयर इज अ स्ट्रक्चर डेटा मीन डेटा स्टोर्ड इन द रो एंड कॉलम or in the form of a table. What we do, we store that data in warehouses like SQL, MySQL, and other database. So what we do, this data, we insert data, we retrieve data, and with the help of a traditional business intelligence tool, what we do, we visualize the data and check the pattern of the data, and so explore the data. Also, what we do, we take predetermined reports like day-to-day report, weekly report, monthly report, yearly reports. So with the help of those reports, we check the resource utilization. But nowadays, जैसे कि हमें पता है कि there is a lot of unstructured data and we have a structured data. So problem related to store that data. So we use Hadoop to store that data, and we use data science algorithm for data visualizations and data predicting analysis. There is a lot of scientific discovery we can do. There is a lot of scientific discovery with that data. The use of data science, there are we can use data science in every field, but there are some example in this slide. First is recommended right product to right customer to enhance the business. What is that? Amazon is the best example of this recommendation system. What Amazon do? Amazon recommend the product to the consumer according to their previous buying history. Amazon क्या करती है, उसके किसी भी कस्टमर की ब्राउजिंग हिस्ट्री को चेक करके देखती है कि उसने क्या प्रोडक्ट बाय किया और किस तरीके की उसकी इंटरेस्ट है या कौन से प्रोजेक्ट को वो बाय करना चाहता है. तो व्हाट टू डू व्हेन वी एंटर when we use Amazon app और ब्राउजर पे Amazon को यूज करते हैं, Amazon recommend those product to us ताकि हम उनको बाय कर सकें. दूसरा second one is predict the characteristics of highly LTV customer and help the customer segmentation. What is LTV? Loan to value customer. जैसे कि हमें पता है कि पहले बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज टू चेक द लोन टू वैल्यू कस्टमर कि वो कौन सा कस्टमर हमारा लोन वापस कर सकता है या कौन सा कस्टमर डिफॉल्ट हो सकता है. सो व्हाट वी डू, दे चेक द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द कस्टमर, एंड जैसे कि क्रेडिट रेटिंग
एंड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द कस्टमर की उसने कभी पहले लोन लिया था, उसको वापस किया था कि नहीं किया गया था, उसके बेस पे वो क्या करते हैं, फिर अपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को बताते हैं कि इन कस्टमर को हम टारगेट कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट दे डू, they call the customer to take a personal loan and house loan, car loan, and other loan. So data science help to predict the LTV customer, build intelligence and ability to in machine. What is that? Drone is the example of a build intelligence of ability in a machine. Drone, Google car are used. Automated Google car is used data science to build the automated car. Predict fraud and transaction beforehand. Predict fraud and transaction beforehand means जैसे कि सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी काफी सारी ट्रांजेक्शन एक साथ हो रही हैं. व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट कि एक साथ मल्टीपल ट्रांजेक्शन क्यों हो रही हैं. इसी तरीके से वी कैन चेक द अकाउंट हिस्ट्री एंड मेक चेक दैट कि ये कोई फ्रॉडेंट कॉल तो नहीं हो रही, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, फ्रॉडेंट ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही. इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ अ डेटा साइंस. परफॉर्म सेंटिमेंट एनालिसिस टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ इलेक्शंस. व्हाट इज दैट? we can use data science in sentiment analysis. Like कभी मैंने सपोज कीजिए आजकल क्या हो रहा है कि ट्विटर्स के ऊपर काफी ट्रेंड चल रहा है. हर पार्टी एक अपनी क्या कर रही है, कोई ट्विटर अकाउंट बना के अपनी कोई पोस्ट करती है, फेसबुक पे कुछ अपने पोस्ट डालती हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन दोस पोस्ट वी कैन चेक द रिएक्शन ऑफ द यूजर कि यूजर ने क्या रिएक्शन दिया. जैसे किसी ट्वीट के ऊपर क्या रिएक्शन दिया या किसी जो पोस्ट किसी ने डाली हुई है उस पोस्ट के ऊपर क्या रिएक्शन दे रहा है. सो इस रिएक्शन के बेस पे ही पार्टीज क्या करती हैं, अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट करते हैं. कैम्ब्रिज एनालिटिका इज द एग्जांपल ऑफ अ सेंटिमेंट एनालिसिस इन द यूएस इलेक्शंस. यूज केसेस ऑफ डेटा साइंस. डेटा साइंस जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देखा कि डेटा साइंस कहाँ पे अमेजोन यूज कर रही है या इलेक्शंस के लिए यूज किया गया. कुछ और जो भी है इसके अंदर यूज किया जा सकता है. डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है जिनके अंदर यूज किया जाता है. वी कैन यूज डेटा साइंस इन ट्रैवल, सेल्स, हेल्थ केयर, क्रेडिट इंश्योरेंस, मार्केटिंग, ऑटोमेशन. फर्स्ट वी विल डिस्कस द ट्रैवल. In travel what we do, dynamic pricing. What is dynamic pricing? Dynamic pricing का मतलब ये है कि जैसे कि सपोज करो वीकडेज के अंदर कुछ प्राइस कुछ और है और वीकेंड के ऊपर प्राइस कुछ और है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ उबर. वी यूज उबर फॉर ट्रैवलिंग. सो उबर क्या करता है, जैसे कि सपोज करिए अगर वीकडे में हम उबर को यूज कर रहे हैं, देयर एज अ उसका जो प्राइस रहता है उसका वो कम रहता है. लेकिन वीकेंड और जैसे वेदर कंडीशन चेंज हुई, उबर के प्राइस जो होते हैं ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं. हाउ उबर डू दैट? कोई जो उबर का ड्राइवर है वो तो चेंज नहीं कर रहा है, लोग क्या कर रही है, ऑटोमेटिकली डायनेमिक प्राइस चेंज हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ मशीन लर्निंग. इसी तरीके से वी कैन प्रेडिक्ट फ्लाइट डिले. यूएस के अंदर एक कंपनी है विच रिकॉर्ड ऑल द डेटा ऑफ फ्लाइट्स, यूएस फ्लाइट्स. वो क्या कर रहे हैं, उस फ्लाइट्स का डेटा देके और उनका पिछला बिहेवियर देके चेक कर सकते हैं कि कौन सी फ्लाइट कैसे डिले होगी, ड्यू टू किसके थ्रू होगी, वेदर कंडीशन डिले होगी या उस फ्लाइट का कोई लैग की वजह से डिले होगी. इस तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सकता है. वी कैन यूज डेटा साइंस इन मार्केटिंग. मार्केटिंग वी कैन यूज इट इन टू वे, like cross selling and upselling. What is cross selling? Cross selling is means, for example, we buy a product, so what we need a second product, associated product with that. Like if we buy bread, we need a jam or butter. उसी तरीके से क्या यूज होता है, अपसेलिंग. अपसेलिंग मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई प्रोडक्ट पहले कोई प्रोडक्ट खरीदा हुआ है तो उसकी वजह से उसका कोई अपग्रेडेड वर्जन आता है तो दे सेंड अस रिकमेंडेड. Amazon यूज दिस टेक्नोलॉजी, वॉलमार्ट यूज दिस टेक्नोलॉजी. जैसे कि सपोज करिए आप कोई वॉलमार्ट या किसी भी डी मार्ट से जाओगे तो आपके पास जो एसोसिएटेड प्रोडक्ट की लिस्ट, एक ही प्रोडक्ट के साथ आपका एसोसिएटेड प्रोडक्ट भी उसके साथ लगा होगा. अगर आपने सपोज करिए, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, अगर आप आज सैनिटाइजर यूज कर रहे हो तो बिकॉज ऑफ अगर तो उसके साथ ही आपके पास क्या होगा कि साथ के काउंटर के अंदर क्या रखा होगा कि मास्क रखा होगा. अगर कोई किसी तरीके से अगर कोई सैनिटाइजर खरीदने आता है तो वो कोशिश ये भी करेगा कि वो मास्क भी ले ले. अगर कोई मास्क खरीदने आ रहा है तो वो क्या करेगा, सैनिटाइजर को भी खरीदने की कोशिश करेगा. सो ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी we can enhance our sale. Third, we use data science in healthcare. How we use data science in healthcare? We can use data science to predict the disease prediction
and medication effectiveness. How we can use this? For example, let's take the example of a disease prediction. For example, we have a data for some group of a people कि उसमें से हम ये चेक करें, डायबिटिक चेक कर रहे हैं कि उनको डायबिटिक किस तरीके से हुई थी या किस तरीके से हुए थे, उनका डेटा देखते हैं किया गया था, उनका BMI इंडेक्स क्या था, उनकी एज क्या थी, उनका शुगर लेवल क्या था, या किस तरीके से। तो फिर हम उसके अगले वाले जो ग्रुप हैं और उनका अगर डेटा चेक करें तो ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन चेक they can affected can with the diabetic or not. Second one is a medication effectiveness. कभी भी जब भी कोई मेडिकल कंपनी क्या करती है, अगर आपने उसने मेडिकेशन का कोई इफेक्टिवनेस नहीं देखी, try that medication on effective some group of a sample group of people, or they can record that data. On the basis of that data they can check that कि जो मेडिसिन इफेक्टिव होगी आगे, we can use that or we cannot use that. उसी तरीके से हम use data science for sales. How we can use data science for sales? Like demand forecasting. Demand forecasting means जैसे कि for example we can forecast the demand on the basis of previous data. Like अगर मेरे को previous year में मेरे को कुछ कोई सेल हुई है, on the basis of that sale we can फोरकास्ट कि अगले साल कितनी सेल होने वाली है या नहीं होने वाली है. अगर ये भी पता किया जा सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा ज्यादा सेल हो रहा है, तो हम उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं लगाएंगे. अगर कोई किसी प्रोडक्ट के ऊपर मेरे पास फॉर एग्जांपल सेल नहीं हो रही है, व्हाट वी डू, वी कैन यूज द स्ट्रेटजी ऑफ डिस्काउंट. 50% डिस्काउंट ऑन द एंड 60% डिस्काउंट वी कैन ऑफर ऑन दैट प्रोडक्ट, या वी कैन एसोसिएट दैट प्रोडक्ट विद अदर प्रोडक्ट, ताकि हमारी सेल क्या हो जाए उसके अंदर इंक्रीज हो जाए. जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देखा कि सेल्फ ड्राइविंग कार इज एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन, and pilotless aircraft and drone is example of a data science. With the help of a data science we can drive self-driving car, because they take the data with the help of a sensor and check that where we increase the speed, where we slow the speed, and किस तरीके से उसको यूज करना है. इन सोशल मीडिया के सेक्शंस में डेटा साइंस का काफी यूज होता है. वी कैन चेक द रिएक्शन ऑफ द यूजर, या जो भी यूजर है, जैसे किसी भी यूजर के अंदर क्या करते हैं हम, पर्टिकुलर पैटर्न्स का क्या करते हैं कि एनालाइज करके देख सकते हैं कि कौन आपके ट्वीट्स को लाइक कर रहा है, कौन से आपके ट्वीट्स को लाइक नहीं कर रहे, ट्वीट्स को लाइक कर रहा है या किस तरीके से क्या कर रहा है. इसी तरीके से हम उसको यूज किया जाता है. मोस्ट ऑफ इलेक्शंस पार्टी और डिफरेंट सर्विस कंपनी यूज द सोशल मीडिया टू advertisement. Now they check the behavior reaction of the user about their product or about their policies. डेटा साइंस टूल्स मीन्स हम डेटा साइंस को के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द प्लेटफॉर्म. टू डेटा साइंस, इन द डेटा साइंस वी यूज Hadoop and Spark, because there is a lot of unstructured data. So what we do, we have to store that data. तो हम उसको उस डेटा को रिलेशनल डेटाबेस के अंदर नहीं स्टोर कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज कर सकते हैं हम, वी कैन यूज Spark, Apache Spark and Hadoop to store that unstructured data. Tool we use, जैसे कि for visualization the data we use Tableau. For developing we use Jupyter, RStudio, and framework we use Spark ML or TensorFlow. Data science, for data science we can use different kind of a language like Python, R, Java and Scala. All languages can be used, but in the use there are Python and R. Mostly used language are Python and R. For machine learning we use different kind of a library like Google, Amazon machine learning, Azure, but RStudio also provides some machine learning algorithm package. We can use RStudio. The base life cycle of a data science project. What is the life cycle of a data science project? कि किस तरीके से life cycle data science का project किस तरीके से work करता है, किस तरीके से. So there are 6 phases in the data science project: business requirement, data acquisitions, data processing, data explorations, modeling and deployments. So what is business requirement? Business requirement is, in business requirement what we have a 3 point: understand the problem, identify central objective, identify variable need to be predicted. Let's take the example of a patient history.
फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं किसी हेल्थ केयर का एक डेटा लूँ, मुझे सबसे सपोज करो एक पेशेंट्स का डेटा मेरे पास आता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि हम प्रेडिक्ट क्या करना चाहते हैं, उस डेटा के साथ क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से उस डेटा को यूज करेंगे। सेकंड इज, हम जैसे सपोज करो मेरे पास पेशेंट का डेटा आ गया है, उस डेटा के अंदर व्हाट वी वांट टू फाइंड, फॉर एग्जांपल वी वांट टू चेक दैट डायबिटिक पेशेंट्स, तो उसके लिए हमें उस डेटा के सेंटर ऑब्जेक्टिव को देखना होगा कि किस तरीके से उस डेटा को मैं यूज कर सकता हूँ। आइडेंटिफाई द वेरिएबल ऑफ दैट टू प्रिडिक्ट। जैसे डायबिटिक के लिए मेरे पास सबसे बड़ा ज्यादा क्या है, वी नीड ग्लूकोज लेवल ऑफ द पेशेंट, तो उसके लिए मैं फिर इसी डेटा को चेक करेंगे कि पेशेंट का ग्लूकोज लेवल किस तरीके का होगा, उसी की रीडिंग की जाएगी। प्रेडिक्टेड वेरिएबल मेरे पास ग्लूकोज लेवल आ गया। सेकेंड वन इज डेटा एक्विजिशन। डेटा, व्हाट इज डेटा एक्विजिशन? इसके अंदर भी वही आ गया कि मुझे अगर किसी डेटा की, अगर मैं प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ तो उस डेटा के लिए मुझे किस तरीके के डेटा की जरूरत है, डेटा के अंदर कौन से, और उस डेटा को मैं किस तरीके से यूज किया जा सकता है। व्हाट इज द डेटा सोर्स? डेटा सोर्स मींस मेरे पास वो डेटा फॉर्मेट किस फॉर्मेट में आ जाएगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, सीएसवी फॉर्मेट में होगा, या सीक्वल्स के अंदर पड़ा हुआ है, माई सीक्वल्स के अंदर पड़ा हुआ है, या जेसन फॉर्मेट के अंदर है, या फिर एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई द व्हाट इज द डेटा सोर्स ऑफ दैट डेटा। हमें कंपनी से या किसी भी कहाँ से भी वो डेटा किस तरीके से आएगा और उस डेटा को किस तरीके से हम चेंज करेंगे। हाउ वी कैन ऑब्टेन दैट डेटा, उस डेटा को मैं लूंगा कैसे और उस डेटा को चेंज किस तरीके से किया जाएगा इन फ्रेम, डेटा फ्रेम और लिस्ट वगैरह। व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू स्टोर दैट डेटा और एक्सेस टू ऑल ऑफ इट। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि मेरे पास डेटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, मैं डेटा को किस फॉर्मेट में चेंज करूं जिसकी वजह से मेरे पास डेटा, उस डेटा की परफॉर्मेंस एक प्रॉपर मैनर के अंदर आए। द थर्ड वन इज data processing. Data processing is what? Data processing is converting the data from raw format to desired format. For example, मेरे पास कोई डेटा CSV और टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दैट डेटा इनटू द फ्रेम, डेटा फ्रेम, लिस्ट, और किस तरीके से। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा है इस एग्जांपल के अंदर, अगर आप इस स्लाइड्स के अंदर देखोगे तो इस डेटा को किसके अंदर चेंज किया है, इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल। So second way is, after transferring the data, you transform the data, what we need a data cleaning. Most of the time in the data science हमारा डेटा क्लीनिंग के ऊपर ही जाता है। 50 to 80% टाइम वी नीड टू क्लीन द डेटा। व्हाट इज डेटा क्लीन? डेटा क्लीन के अंदर क्या है, व्हाट आर चेकिंग द मिसिंग वैल्यू, करप्टेड डेटा, रिमूव अननेसेसरी डेटा। फॉर एग्जांपल, in this field what we check, one, all field are numeric, but this is a string value, this is a string value, so we have to remove this value। उसी तरीके से अगर मैं देखूं वीपी का डेटा देखूं तो वीपी के अंदर 6600 है, दिस इज अ करप्टेड डेटा, बिकॉज वीपी की वैल्यू इतनी नहीं हो सकती, तो वी हैव टू रिमूव विद दैट डेटा विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल वैलिडेशंस। उसी तरीके से ग्लूकोज देखा जाए तो ग्लूकोज मेरे पास के अंदर है, कुछ मिसिंग वैल्यू है, बिकॉज डायबिटिक प्रेडिक्शंस के अंदर मेरे पास ग्लूकोज लेवल की काफी ज्यादा वैल्यू होगी, तो वी कैन नॉट मिस दैट वैल्यू। तो यहाँ पे भी करप्शन है। जैसे बीएमआई इंडेक्स भी मेरे को चेक करना है, तो बीएम दो बोथ टू फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज एंड बीएमआई लेवल। तो इन फील्ड्स के अंदर मिसिंग डेटा नहीं होगा, तो सेंड अननेसेसरी डेटा। सपोज वी आर प्रेडिक्टिंग द डायबिटिक, सो देयर इज नो नीड ऑफ अ इनकम, सो मेरे को इस को भी इसके अंदर से रिमूव करना होगा। After cleaning the data, what we need a exploration data. What is data exploration? जो भी मेरे पास एक predicting field है, उन सबको क्या करना है, किसी एक proper format के अंदर या किसी चार्ट के थ्रू उसकी data visualization देखनी है कि किस तरीके से पैटर्न, डेटा का पैटर्न क्या है, क्या वो पैटर्न इंक्रीजिंग वे में है या पैटर्न क्या डिक्रीजिंग वे के अंदर है। उस तरीके से हम पैटर्न्स को क्या करेंगे और चेक करेंगे और उसके बेस पे हम एक इंफॉर्मेशन निकालेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हाइपोथेसिस लगाएंगे। After data exploration, what we do, we डू द डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग ये प्रोजेक्ट का, डेटा साइंस के प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फेस है। इस फेस के अंदर क्या करते हैं, वी डिटरमिन द वी बट वी यूज द मशीन लर्निंग टूल्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, किस तरीके की मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करनी है, क्या यूज करना है और कौन सी डेटा, क्या मेरे पास, हाउ टू ट्रेन दैट डेटा, हाउ वी टेस्ट द डेटा, और जब मैं ट्रेन और टेस्ट कर रहा हूँ डेटा को, क्या मेरे पास वो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर मेरे को आउटपुट देगा कि नहीं देगा। इस तरीके की टर्मिनेशन सारा चेक किया जाता है। तो मॉडलिंग टूल व्हाट वी यूज SQL एनालिसिस सर्विसेज, R and SAS
to evaluate and test efficiency with the help, we can test the data from with the help of these tools. Deployment. When we test the data after the testing the modeling the data, what we do, we deploy the models. So how we will deploy the model? First of all, what we have to do, we have to check the deployment environment for dependency issue. जरूरी नहीं है कि आपने एक बार प्रोजेक्ट बना दिया उसको डिप्लॉय करने के लिए, बट वी नीड उसके सारे डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा, उसके बेस पे हम डिप्लॉयमेंट चेक करते हैं. डिप्लॉय द मॉडल इन प्री प्रोडक्शन मॉडल एंड टेस्ट एनवायरमेंट. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मॉडल को ट्रेन कर दिया और ट्रेन करने के बाद ही वो आपका सारा मॉडल चल जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी डिप्लॉय प्री प्रोडक्शन मॉडल के अंदर उस कुछ देर के लिए या कुछ टाइम के लिए उस प्री प्रोडक्शन मॉडल के अंदर चेक किया जाएगा. आफ्टर दैट वी कैन चेक इट इन रियल एनवायरमेंट, मॉनिटर द परफॉर्मेंस. और क्योंकि हम जब रियल टाइम के अंदर हम डेटा को मॉनिटर करेंगे तो वो मेरे पास डेटा टेस्ट या ट्रांसफॉर्म डेटा जो होगा वो स्मॉल स्केल पे नहीं होगा. रियल टाइम सिनेरियो के अंदर डेटा जो होता है वो काफी ज्यादा होगा. तो क्या मेरे पास मैंने जो मॉडल तैयार किया है वो एक रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉपरली अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा. इस तरीके से हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग करके उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मशीन लर्निंग इज इंपॉर्टेंट टूल इन द डेटा साइंस, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम व्हाट वी डू, we train the data and test the data. So first of all, what is the machine learning? Machine learning is the added the most of basic practice using the algorithm data, learn from it and then make the determination or prediction about the something in the world. For example, मेरे पास कुछ डेटा है, उस डेटा के बेस पे ही हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रेन एंड टेस्ट कर रहे हैं और प्रेडिक्ट किस पर्पस के लिए उसको प्रेडिक्शन पर्पस के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं. So there are three type of machine learning: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Supervised learning is based on task driven and unsupervised learning is based on data driven, and reinforcement learning is based on learn from error. It means it's a hit and trial base पे काम करती है. First we will discuss the supervised learning. What is the supervised learning and how it works? For example, supervised learning को करने से पहले एक एग्जांपल देते हैं. For example, हम एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर जाते हैं. So what teacher do to train बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या, एलिमेंट्री वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल दे शो शेप्स या कुछ शेप्स बना के दिखाते हैं, या कुछ जैसे सपोज करो फ्रूट्स की शेप्स दिखा दी, किसी और चीज की शेप दिखा दी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए तो टीचर शो द एप्पल टू द चाइल्ड एंड से दैट इट इज एप्पल एप्पल एप्पल. तो बच्चा क्या करता है, उसको एप्पल कर लेता है, उसको ध्यान में रख लेता है. फिर जब भी उस चाइल्ड को दोबारा एप्पल दिखाया जाएगा तो वो क्या कर देता है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है. तो मशीन सुपरवाइज मशीन लर्निंग भी इसी टेक्निक के ऊपर काम करती है. फर्स्ट वी व्हाट वी डू, वी फर्स्ट ट्रेन द डेटा. मशीन को ट्रेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डेटा. व्हाट इज लेबल डेटा? कि उस डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता देते हैं, नेम शेप्स बता देते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अ मशीन क्या कर रही है, वो उसको सारा डेटा को टेस्ट ट्रेन कर दिया जाते हैं. आफ्टर दैट व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड अनलेबल डेटा, जिसके बेस पे वो फिर उसी ट्रेन डेटा के बेस पे ही अपने रिजल्ट शो करती है. फॉर एग्जांपल इस मॉडल के अंदर देखा जाए तो व्हाट वी डू, हमने एक लेबल्स के अंदर 3 कैट्स का लेबल्स रख दिया कि इस तरीके की कैट की इस तरीके की हो सकती हैं, 3 टाइप ऑफ कैट्स का फीचर्स हो सकते हैं. मशीन अंडरस्टैंड दैट. आफ्टर दैट व्हाट वी डू, वी फीड द मशीन न्यू अनलेबल इन्फॉर्मेशन एंड सी इफ द टैग ऑफ द न्यू अप्रोप्रिएटली. जब मैंने मशीन के ऊपर कोई अनलेबल डेटा डाला, मशीन प्रोसेस दैट डेटा एंड उसने रिजल्ट दिया, मशीन ने रिजल्ट दिया कि देयर आर 2 कैट्स एंड देयर आर नो 2 कैट्स नहीं है. मशीन सुपरवाइज लर्निंग कैन 2 तरीके की होती है, क्लासिफिकेशंस एंड रिग्रेशंस. द सेकंड वन इज अनसुपरवाइज लर्निंग. अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या है कि उसके अंदर हमारे पास जो डेटा होगा वो विदाउट लेबल होगा. उस डेटा को ना तो ट्रेन किया जाएगा, ना ही उसकी आउटपुट होती है. जबकि मेरे पास जो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है, वी नो द आउटपुट, वी लेबल डेटा होता है और उसको ट्रेन एंड टेस्ट किया जाता है. बल्कि अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास ना तो लेबल होते हैं, ना तो डेटा को ट्रेन किया जाता है, अननोन आउटपुट है. देन हाउ अनसुपरवाइज लर्निंग वर्क. अनसुपरवाइज लर्निंग भी क्या करती है कि डेटा को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कैटेगराइज कर देती है. हम उसको जितना भी डेटा होगा उसको
इनपुट करवा देते हैं, फिर वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा दे कैरेक्टराइज द डेटा, और उस कैरेक्टराइजेशन के बेस पे दे divide the data into small parts. That process is known as a clustering. For example, इस example के अंदर देखते हैं all shapes. मेरे पास सारी shapes हैं, मतलब सारा data in a round shapes है, लेकिन जब data सारा same है, but the color of the data is a different. There is a green, red and blue. तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या किया, उसने डेटा को प्रोसेस किया और उसको ब्लू, ग्रीन एंड रेड के अंदर उसको आउटपुट शो कर दिया. हाउ दिस सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग वर्क. नाउ वी डिस्कस द केस स्टडी ऑफ नेटफ्लिक्स. इसके अंदर देखेंगे कि नेटफ्लिक्स किस तरीके से काम करती है. नेटफ्लिक्स वाज अ कंपनी. नेटफ्लिक्स की पहले कंपनी थी जो कि डीवीडी सप्लाई करती थी ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड, कि कस्टमर को कौन सी डीवीडी देखनी है वो नेटफ्लिक्स पे फोन करता था, या नेटफ्लिक्स के क्यूरी भेजता था, नेटफ्लिक्स उस पे क्या कर देती थी ऑन द बेसिस ऑफ अ डिमांड वो डीवीडी सप्लाई कर देते हैं. बट 2007 नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अप्लाई किया. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग उसने सारे के सारी जो भी डीवीडी थी उनको ऑनलाइन स्ट्रीम कर दिया, जिसके बेस पे क्या किया, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश की. दे अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ यूजर थ्रू इम्पैक्ट क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज द स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस, ऑप्टिमाइज द कंटेंट सर्चेज एंड मेकिंग द कंटेंट राइट. अब आप यहाँ पे सोचोगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट इन द नेटफ्लिक्स. कि डेटा नेटफ्लिक्स तो सिर्फ क्या कर रही है, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम कर रही है, उसके अंदर डेटा साइंस का क्या रोल है. डेटा साइंटिस्ट और डेटा साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे. बिकॉज विद द हेल्प ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट व्हाट नेटफ्लिक्स डू, they stream the behavior, they understand the behavior of a customers. Understand the behavior of a customer means उन्होंने ये चेक किया कि कस्टमर किस तरीके का वीडियो देखना पसंद करते हैं. जैसे कि सपोज करो कौन से जॉनर का मूवी देखना, कोई एक्शन मूवी देखना पसंद करता है, कोई एडवेंचर मूवी, कोई कॉमेडी के ऊपर देखना पसंद करता है. दूसरा उन्होंने क्या किया कि उस तरीके से डेटा को स्ट्रीम कर दिया और उस पर्टिकुलर यूजर को वही डेटा शो किया जिस तरीके का वो डेटा प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली वो चेक कर रहा था या देख रहा था. फॉर एग्जांपल मैंने 2 मूवी नेटफ्लिक्स के अंदर सपोज करिए एक्शन मूवी देखी, तो नेटफ्लिक्स मेरे को क्या करेगी कि तीसरी मूवी भी एक्शन की ही रेकमेंड करेगी, चाहे वो मुझे पसंद आए चाहे वो नहीं पसंद आए. दैट इज बेस्ड ऑन माई रैंकिंग. जैसे मैंने मूवी 1 को 5 स्टार दे दिए, मूवी 2 को 5 स्टार दे दिए एंड दैट इज एक्शन मूवी, तो नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग क्या करेगी, मेरे को थर्ड मूवी भी एक्शंस की ही दिखाएगी. यहाँ पे डेटा एनालिसिस नेटफ्लिक्स के अंदर किस तरीके से होता है. डेटा सोर्स पड़ा हुआ, डेटा सोर्स के अंदर क्या करते हैं, फाइंड द नेक्स्ट स्मैश हिट सीरीज. डेटा नेटफ्लिक्स इसके अंदर क्या किया उन्होंने कि पहले प्रीवियस डेटा की हिस्ट्री के बेस पे देखा गया कि कौन सी सीरीज यूजर्स को काफी ज्यादा पसंद आई. जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स लोगों को काफी पसंद आई, सेक्रेट गेम लोगों को काफी पसंद आई. तो नेटफ्लिक्स क्या करती है कि अगली वो सीरीज वैसे ही लॉन्च करेंगे जो इनके बेस पे या जिस बेस पे यूजर की रैंकिंग काफी अच्छी आई होगी उसी तरीके से. पर्सनलाइज वीडियो रैंकर. पर्सनली वीडियो रैंकर मीन्स फॉर एग्जाम्पल I'm using Netflix app and other one also using a Netflix app. मैं एक्शन जॉनर्स को काफी पसंद कर रहा हूँ और कोई दूसरा यूजर जो है वो कॉमेडी जॉनर को काफी पसंद कर रहा है. तो मेरा और उसका जो वीडियो पर्सनलाइजेशन होगी वो डिफरेंट होगी. मेरे लिए वो सारे की सारी एक्शन जॉनर्स की मूवी दिखाएगा और उसके लिए द सेकंड यूजर के लिए वो कॉमेडी जॉनर या किसी के तरीके. उसी तरीके से नेटफ्लिक्स तीसरी काम जो करती है टॉप वीडियो रैंकिंग दिखाती है. जो टॉप टाइम पे रैंक वीडियो रैंकिंग है जिसकी रेटिंग जो है काफी अच्छी चल रही है वो टॉप लिस्ट के अंदर आपको दिखा देगा. या फिर सेम उसी तरीके से जो ट्रेंडिंग फीचर्स चल रही है, कोई वेब सीरीज ट्रेंडिंग फीचिंग पे चल रही है तरीके से वो उसको दिखा देता है. नेटफ्लिक्स हैज अ कंटिन्यू वॉचिंग फीचर्स. आपने मूवी सपोज करिए कोई आप मूवी देख रहे हो, आपने उसको बीच में ही छोड़ दिया, तो फिर आप उस मूवी को वहीं से दोबारा देख सकते हो. इस तरीके से लास्ट वन इज अ सिमिलैरिटी एल्गोरिथम. Similarity algorithm related to group. For example, 10 people like सपोज करिए 5 यूजर हैं, 5 यूजर्स पहली 2 मूवी सेम मूवी देखते हैं. जैसे सपोज कीजिए कॉमेडी वाली देखते हैं, फिर अगले 5 यूजर वो कुछ फिर कॉमेडी देखते हैं, उसकी रैंकिंग देते हैं. अब जब जो छठा यूजर है वो उसमें से कोई यूजर को अगर कोई नई कॉमेडी वाली मूवी आती है तो हर यूजर को क्या कर दी जाएगी,
रिकमेंड कर दी जाएगी, क्योंकि उनका क्या हो रहा है, सिमिलैरिटी जो वॉचिंग हिस्ट्री है दैट इज अ सिमिलर, तो हर किसी को वो कॉमेडी मूवी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिकमेंड हो जाएगी. What kind of algorithm Netflix used? Netflix used two type of algorithm in streaming system. First one is a content-based filtering, and second is a collaborating filtering. First we understand content-based filtering. What is content-based filtering? Content-based filtering क्या होते हैं, एक यूजर के बेस पे यूज प्रीवियस हिस्ट्री के बेस पे ही उसको कंटेंट रेकमेंड किया जाता है. फॉर एग्जांपल, हम पीछे ही समझ चुके हैं, पिछले एक स्लाइड के अंदर समझ चुके हैं कि किसी यूजर ने एक मूवी देखी, उसको रेटिंग दी, अगेन एक और मूवी सेम जॉनर की देखी, उसको रेटिंग दी, तो होगा क्या कि उस यूजर के प्रोफाइल के अंदर फिर वो सेम तरीके की कोई मूवी रेकमेंड कर दी जाएगी जो सेम कंटेंट होगा, उसी तरीके सेम कंटेंट के बेस पे ही उसको रेकमेंड किया, जब तक वो अपनी रेटिंग प्राप्त नहीं करता है. सेकेंड इज अ collaborating filtering. Collaborating filtering क्या चीज है कि इट रिलेटेड टू द ग्रुप ऑफ पीपल सिमिलर टाइप. जैसे फॉर एग्जांपल, there are 6 user in my slide, 6 यूजर इन स्लाइड. अगर एक यूजर भी एक चीज सपोज करिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 6 यूजर इन माई स्लाइड क्या किया जा रहा है कि उन यूजर के अंदर सारे एक ही चीज को यूज कर रहे हैं, सेम कंटेंट को अगर लाइक कर रहे हैं, तो आगे जाके क्या करे किया जाएगा कि उनके कंटेंट के बेस पे ही अगर सपोज करिए इन 4 ग्रुप ऑफ पीपल्स जो सिमिलर कंटेंट देख रहे हैं, तो नेक्स्ट सर्च के अंदर उसी एक यूजर को फिर सेम कंटेंट रेकमेंड कर दिया जाएगा जो बाकी 4 ने देखा हुआ है. दिस इज नोन एज अ कोलैबोरेटिंग फिल्टरिंग. व्हाट इज द डेटा साइंस स्किल सेट? डेटा साइंस के लिए क्या क्या स्किल सेट्स हमें चाहिए, किस तरीके की स्किल सेट चाहिए कि कौन इस डेटा साइंस के को यूज कर सकता है? फर्स्ट वी नो फर्स्ट वी नो डोमेन नॉलेज. हमें पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, जैसे हेल्थ डोमेन नॉलेज आ गया, रिटेल नॉलेज आ गया. सो डोमेन का नॉलेज होना जरूरी है इसके अंदर. द सेकंड वन इज स्टैटिकल नॉलेज. सो स्टैटिकल नॉलेज हमें डेटा साइंस के लिए थोड़ा सा स्टैट्स और मैथ के चाहिए, एंड डिजाइनिंग मेथड्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. वी नीड अ सिंगल लैंग्वेज लाइक पाइथन एंड आर. कोई एक नॉलेज होना चाहिए, एंड वी नीड सम नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग लाइक क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन मॉडल. एंड उसके लिए कंप्यूटर साइंस होना चाहिए फॉर डेटा गवर्नेंस, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा वैलिडेशन एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड सम नॉलेज ऑफ अ डेटा क्वेरी नॉलेज. डेटाबेस का नॉलेज भी होना चाहिए ताकि हम उस डेटा से डेटा रिट्रीव कर सकें. वाई डेटा साइंस? डेटा साइंस किस लिए इतने ज़्यादा जरूरी क्यों है, और डेटा साइंस इतना क्यों इम्पोर्टेंस हो गया? सो अकॉर्डिंग द ग्लासडोर, डेटा साइंस इज अ टॉप मोस्ट जॉब इन द अमेरिका. उसी तरीके से कि इन 21st सेंचुरी एज जिस तरीके से डेटा हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, सो डेटा साइंस की जो जॉब है दैट इज द कूलेस्ट जॉब इन द 21st सेंचुरी. या अभी भी करंटली जो भी है, इतना डेटा के बेस पे डेटा साइंसिस्ट की जरूरत है. अभी अगर रिसेंट स्टडीज के अंदर देखा गया है कि 79.7 डेटा साइंटिस्ट की जरूरत है अभी इस फील्ड के अंदर. डेटा साइंस जो है वो 2000 टू 2040 तक 11% से ग्रोथ कर रहा है रादर देन 7%. बाकी फील्ड जहाँ पे 7% कर रही है, डेटा साइंस की जरूरत जो 11% से ग्रो कर रही है. दिस इज अ ग्रोथ ऑफ डेटा साइंस. किस तरीके से ग्रो कर रही है? दिस इज अ ग्लोबल डेटा फॉर डेटा साइंस. 2007 के अंदर डेटा साइंस का रोल इतना था, अब 2020 तक जो ये इंक्रीज करेगी विद द हेल्प ऑफ 29% CGR के थ्रू ग्रोथ करेगी. व्हाट इज द एवरेज डेटा साइंस सैलरी इन द इंडिया? तो ग्रोथ सैलरी पैकेज जो है वो 8 लाख के करीब है. मीडियन सैलरी 8 लाख के करीब है डेटा साइंस का इन इंडिया. For more, Spic offer virtual classroom.
SPIC also provide training in data science and big data analysis, and the training start from 3rd June. SPIC also provide live project and virtual classes. You can for detail you can download course content from www.spicindia.com. SPIC Mr. virtual Ashok, I would like classroom. to chip in. I would like to chip in now. As Mr. Ashok was telling you that we have launched all our programs through Speak Virtual Classroom portal. Now, as Mr. Ashok was telling you that we are launching our data analysis batch from 3rd of June. So students who are interested, they can visit our website www.speakindia.com and they can register themselves. Okay. Now the classes which we're gonna take, it's gonna be a very different experience because we have tied up with Cisco and we are using their WebEx solution, which we are using it right now. So through this virtual classroom, they're going to be a live interaction class. It's not going to be like a PPT like we are presenting it right now. There you can easily interact with your faculty. Faculty will use the whiteboard to explain the queries and the syntaxes. And the most important thing is, even through our virtual classroom, we'll be allocating you live projects that I mentioned you in the start of the session. So we'll be giving you live projects also, students who are interested. Okay, and you'll be getting 2 certificates. The first certificate would be your project completion certificate, and the second certificate would be your participation certificate, which will be given by Chandigarh Administration, Department of IT. Okay, now as you know, this virtual classroom, you can do lot of things like multimedia sharing. There'll be a test engine also where we can easily conduct your test. The MCQs would be there. We'll be giving you a regular feedback also, and there will be a attention indicator also. We will get to know in case any student is not attentive in the class. We can make it out, and we can tell him also that देख भाई तू क्या कर रहा था ड्यूरिंग द सेशन, तू व्हाट्सएप देख रहा था या तू गूगल पे कुछ और सर्च कर रहा था. सो इट्स अ वेरी 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 यूजफुल एंड वेरी वेरी इनोवेटिव and a very very interesting tool. So in the end, I would only I'll close this session by saying this, that in case you guys are interested for for a training program on data science, then you can visit our website speakindia.com and you can register for your program. And another thing, all of the students who have attended yesterday's webinar and today's webinar, they can download their participation certificate from 3rd July onwards. They just have to visit our website speakindia.com. They have to enter user ID, their email ID, and their password as their registered mobile number. You just have to enter your registered email ID and registered mobile number, and you can download your participation certificate of these 2 webinars. Okay, Mr. Ashok, anything else you want to add? Anybody who has any queries regarding this session, we would love to address them. You can raise your hand.